संसद में जाति वाले बयान पर हंगामा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद में घमासान देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। आपको बता दें कि संसद में अनुराग ठाकुर से माफी की मांग अब लगातार की जा रही है। सदन में अनुराग माफी मांगे के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आओ के भी नारे लगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस की स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग और वहीं जाति जनगणना समेत 3 मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो सदन में जाति पर घमासान देखने को मिला। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। आपको बता दें कि सदन में अनुराग ठाकुर माफी मांगे के नारे लगाए गए। पीएम मोदी सदन में आओ के भी नारे लगे हैं। तो कांग्रेस की स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि जाति जनगणना समेत 3 मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अब संसद में घमासान देखने को मिला, जहां लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई है। तो वहीं विपक्ष लगातार सदन में अनुराग माफी मांगे के नारे लगाता हुआ नजर आया। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी सदन में आओ के भी नारे लगाए हैं। दरअसल अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। इसी को लेकर के जहां सदन में भी जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई है। जाति जनगणना समेत 3 मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संसद में अनुराग ठाकुर से माफी की मांग की गई है। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए बयान को लेकर के ही लगातार हंगामा लोकसभा में देखने को मिला और इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। In Lok Sabha. Sir, I oppose the introduction of bill on 3 grounds. The first one is the bill is in violation of Article 348(1)(b) of the Constitution. Number 2, the bill is not complying the provisions of Article 120 and 343 of the Constitution. And the bill is not in accordance with Section 3 of the Official Languages Act 1963. Sir, the name of this bill, if you examine, it was the name of the original bill was Aircraft Bill 1934. That the title of the bill was in English. The contents of the bill is also in English. Now the government wishes or would like to change the nomenclature of the title of the bill. But the contents of the bill is absolutely in English. But they want to change the name or the title of the bill in English. The aircraft bill is to be amended as Bharatiya Vayuyan Vidwayak 2024. Peoples from south part of India, it is very difficult even to pronounce it. What is the logical reason by which this is being changed? That is my specific question. Why I am proviso to Rule 72(1), why I am saying is, the proviso says that the bill can be opposed on the ground that it is lacking legislative competence to introduce the bill. Why there is no legislative competence in the bill is, Article 348(1), subclause 1, clause 1, subclause B. Just I may be permitted to read Article 348(1)(b). Sir, notwithstanding anything foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of the bill to be introduced or amendments that to be introduced in either houses of Parliament or in the houses or either houses of the legislature of a state, and all acts passed by the Parliament or the legislature of a state and all ordinances promulgated by the President or the Governor of the state, of all orders, rules, regulations, and bylaws issued under this Constitution
or under any law made by Parliament or the legislature of the state shall be in the English language. This shall be in the English language. That is the authoritative text to be presented before the Supreme Court. Okay. Please, I'm purely on merits. No, it should be in English. That is Article 348, Clause 1, Subclause B says. But here, the government wants to change the bill. It is, see, that this is a federal constitution and we are living in a federal polity. What is the logical reason why we are changing the title of the bill? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में जाति पर घमासान, जाति वाले बयान पर संसद में हंगामा देखने को मिला। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर घमासान लगातार जारी है। आज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी उस भाषण को समर्थन करते हैं जिसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों, भाई बहनों का अपमान किया गया है। इसके विरोध में आज इंडिया अलायंस आज यहाँ पे खड़ी है। हम सब जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और उनके अपमान जो हुआ है, हमारे दलित, पिछड़ों, आदिवासी भाइयों के प्रति जो अपमान हुआ है, उसके विरोध में आज हमने प्रश्नकाल के समय अपना विरोध जताया। थैंक यू। मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपराएं आप नहीं पा रहे हैं। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। तो संसद में जाति वाले बयान पर घमासान जारी है। कांग्रेस सुबह शाम जाति जाति करती है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। तो वहीं आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने जाति वाले बयान पर यह घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा भी किया, तो हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई।